go to the power of the subconscious mind, and we are almost on the last leg of our chapter is kitab ka. Or who's reading for us? Ma'am, Sorry. I'm reading Poonam Modi. Yeah, please go ahead. Hi. His mind active at 99. My father learned the French language at 65 years of age and became an authority on it at 70. He made a study of Gaelic when he was over 60 and became an acknowledged and famous teacher of the subject. He assisted my sister in a school of higher learning and continued to do so until he passed away at 99. His mind was as clear at 99 as it was when he was 20. Moreover, his handwriting and his reasoning powers had improved with age. Truly, you are as old as you think and feel. Yeah, how true is that? ये अपने डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपने फादर के बारे में बता रहे हैं, ये अपने फादर के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सब तब सीखी थी जब वो 65 ईयर्स के थे। 70 ईयर्स में उन्होंने कुछ लिखा था, उसके बाद उन्होंने असिस्ट किया था उनकी बहन को हायर लर्निंग के लिए, एंड फाइनली वो ही पास्ड अवे एट 99 ईयर्स में। और 99 ईयर्स में उनकी बहुत शार्प दिमाग और मेमोरी था, यही वो बता रहे हैं। मतलब he says that his mind was as clear at 99 as it was when he was 20। इसीलिए लिखा हुआ है दैट एज इज जो आप थिंक एंड फील करते हो, आपकी उम्र उतनी है। अगर आप अपने आप को लाइक लगातार बोलते हो दैट एज इज जस्ट नंबर एंड आई कैन डू दिस, ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस, ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस, दिस इज ट्रेनिंग योर माइंड। और जो आप माइंड को ट्रेन करते हो आपकी बॉडी में है। सो वो बोल रहे हैं कि उनकी हैंडराइटिंग और उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज उम्र के साथ अच्छी हो गई थी, दैट वे। सो सच अ बिग थिंग। हाँ जी। We need our senior citizens. Marcus Porcus Cato, the Roman patriot, learned Greek at 80. Madame Ernstein, Schumann, Haig, the great German American contralto, reached the pinnacle of her musical success after she became a grandmother. It is wonderful to behold the accomplishments of the oldsters. General Douglas, MacArthur, Harry S. Truman, General Dwight David Eisenhower, and American financier Bernard Baruch are interesting, active, and contributing their talents and wisdom to the world. The Greek philosopher Socrates learned to play musical instruments when he was 80 years old. Michelangelo was painting his greatest canvases at 80. At 80, Sios Simondis won the prize for poetry. Johann von Goethe finished first, and Leopold von Ranke commenced his history of the world when he finished at 92. Alfred Tennyson wrote a magnificent poem, Crossing the Bar, at 83. Isaac Newton was hard at work, close to 85. At 88, John Wesley was directing, preaching, and guiding Methodism. We have several men of 95 years who came to my lectures, and they tell me they are in better health now than they were at 20. Let us place our senior citizen in high places and give them every opportunity to bring forth the flowers of paradise. If you are retired, get interested in the laws of life and the wonders of your subconscious mind. Do something you have always wanted to do. Study new subjects and investigate new ideas. Pray as follows. As the heart panteth after the water brooks,
So panteth my soul after thee, O God. Psalm 42:1. या सो ये सारी उन लोगों का नाम के साथ उनके अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने आफ्टर 80 इयर्स अचीव किए। पोयम लिखी कोई 92 में, किसी ने 82 में किताब लिखी है, किसी ने 85 में लेक्चर्स दिया है। और मुझे ये इतना सुंदर ये वाला वर्ड लगा है, फ्लावर्स ऑफ पैराडाइज। So he says that let us place our senior citizens in high places and give them every opportunity to bring forth the flowers of paradise. राइट, कितना सुंदर लिखा हुआ है। तो उन्होंने सारे ये वाला एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस है जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी दे रहे हैं सारे उन लोगों को जो लोग सीनियर सिटीजन है, और कह रहे हैं कि अगर आप रिटायर्ड हो जिंदगी में, प्लीज गेट इंटरेस्टेड इन द लॉज ऑफ लाइफ। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं यही लॉ ऑफ लाइफ होती है, ग्रैटिट्यूड एंड लव एंड द पावर्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। एंड वो सब करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जो लिख रहे हैं ना, डू समथिंग यू ऑलवेज वांटेड टू डू, और स्टडी न्यू सब्जेक्ट्स एंड इन्वेस्टिगेट न्यू आइडियाज। राइट, सो दैट इज सो इंटरेस्टिंग। आजकल यूट्यूब का इन्फ्लक्स है। आई रिमेम्बर कोविड के टाइम में, बिकॉज हम टाइम होता था, तो मैंने एक लंबी सी लिस्ट बनाई थी कि मैं क्या क्या करूंगी, बिकॉज हमको ये पता था 3 महीने तक इंडिया नहीं खुलने वाला और ऑफिस भी नहीं खुलेगा और ये सारा। तो घर से ही काम कर रहे थे हम लोग, तो 10 से 6 घर से काम कर रहे थे, बट वो कम्यूटिंग टाइम इतना लंबा होता है तो वो बच रहा था सारा। तो हम सोच रहे थे क्या करेंगे, और फिर सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो देन आई हैड मेड दैट लिस्ट, उस पर मैंने ये चीज डाली थी, टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। और फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। So my son told me that mama, if you want to learn the French language, step by step, class by class YouTube पे अवेलेबल है। तो लिटरली फर्स्ट डे क्लास 1 20 मिनट की क्लासेस होती थी, जो अभी भी यूट्यूब पे, लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज आप डालोगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा। तो वो इंग्लिश एंड फ्रेंच टीचर थी जो भी वो कर रही थी, सिखा रही थी। वो मतलब क्लास बाय क्लास वो 30-40 क्लासेस की सीरीज थी। और उसमें आज ये है, कल ये है, परसों ये है, फिर वो रिवीजन होता था सेकेंड क्लास में, है ना। तो मैंने पूरी फ्रेंच लैंग्वेज फिर एक अपना रजिस्टर बनाया, बिकॉज व्हेन आई डू समथिंग आई रियली डीप डाइव एंड आई डू इट वेरी सिंसियरली। तो मैंने एक रजिस्टर बनाया और उसमें लिखा लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज, डेट डाली, एंड देन वन बाय वन एवरी डे आई वुड डू इट कंसिस्टेंटली। और मुझे मेरी इतनी अच्छी फ्रेंच हो गई थी। इट जस्ट दैट वो स्पोकन फ्रेंच की वो थी, लाइक रिटन फ्रेंच तो इतना नहीं समझ में आ रहा था, बट स्पोकन फ्रेंच वो लगातार हमको रिविजन कराते रहते थे। तो आजकल के जमाने में तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको जापानीज लैंग्वेज सीखनी है, अगर आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी आर्ट सीखना है। मेरी जो फ्रेंड है जैज जसबीर, तो उसका बेटा इज अ वेरी गुड गिटारिस्ट। उसने कहा, मैंने उससे यही पूछा, मैंने कहा तुम लंदन जा रहे हो परफॉर्म करने, तुमने कहाँ से सीखा है गिटार? तो कहता है कुछ नहीं आंटी, मैंने तो यूट्यूब से सीखा है, यूट्यूब पे लर्निंग क्लासेस होती हैं। मतलब सो इट वाज सो इजी फॉर हिम एंड देन ही डिड इट, और अब वो इधर उधर परफॉर्म करता है, और मेनली बैंड वो है, गिटारिस्ट है एंड सिंगर भी है। सो इस तरह से किसी भी कोई एज नहीं होती है ना, कभी भी। आजकल तो बहुत नॉलेज इन्फ्लक्स है हर तरफ। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू डू दैट। योगा सीख सकते हैं इफ नॉट एनीथिंग, तो वो यही बोल रहे हैं, डू समथिंग यू ऑलवेज वांटेड टू डू। स्टडी न्यू सब्जेक्ट्स, उससे हमारा ब्रेन भी शार्प होता है ना, हिप्पोकैम्पस स्टिमुलेट होता है, और आपका ब्रेन और शार्प होता जाएगा व्हेन यू लर्न न्यू थिंग्स, राइट। सो दैट एंड इन्वेस्टिगेट न्यू आइडियाज, सो दैट इज व्हाट ही सेज। या, वन सेकंड। The fruits of old age. Yes, Puna. The fruits of old age. His flesh shall be fresher than a child's. He shall return to the days of his youth. Old age really means the contemplation of the truths of God from the highest standpoint. Realize that you are on an endless journey, a series of important steps in the ceaseless, tireless, endless ocean of life. Then, with the psalmist, you will say, they shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. You are a son of infinite life, which knows no end.
and you are a child of eternity. या इतने अच्छे से जस्ट सी मेटाफोराइज कैसे उन्होंने किया है दैट ऑल द फ्रूट्स विल बिकम फैट एंड फ्लरिशिंग जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी. फिर उन्होंने बोला है दैट द फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज लव, जो हमारे अंदर सोल है, जॉय, पीस, पेशेंस, जेंटलनेस, गुडनेस, फेथ, मीकनेस, टेम्परेंस. एंड ही सेज दैट इनके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है. तो ये फ्रूट्स आर व्हाट यू हैव टू नर्चर, राइट? चाहे आपकी जो भी एज है, ये तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो लॉ ऑफ लाइफ है. So that way, then he says that you are a son of infinite life which knows no end and you're a child of eternity. इसका मतलब है लास्ट डे तक enjoy करो ये सारी ये वाली जिंदगी. और इटर्निटी, सोल तो वैसे भी दोबारा रीबर्थ ले ही लेगा किसी और बॉडी में जाके अगले जन्म में. सो लिव लाइक दैट सो दैट यू कैन एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट. बहुत लोग उम्र से डरते हैं कि फिर क्या होगा, बच्चे चले जाते हैं बाहर, जब एक्चुअली पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है बच्चों की, तो डेफिनेटली उनका भी करियर है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वाई दे शुड नॉट गो. बट देन जब हम अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करेंगे तो हमको नहीं फर्क पड़ेगा इन सब चीजों का कि चिल्ड्रन आर आउट, और देन यू आर सो हैप्पी इन योर ओन स्पेस एंड दैट इज हाउ इट शुड बी. कोई बंधन नहीं होना चाहिए किसी के लिए, आपके खुद के लिए भी और family members के लिए भी, when you really enjoy life to the fullest, and that is what it is. So yeah, profitable pointers are the Profitable points. pointers. First, patience, kindness, love, goodwill, joy, happiness, wisdom, and understanding are qualities which never grow old. Cultivate them and express them and remain young in mind and body. Second, some research physicians say that the neurotic fear of the effects of time may well be the cause of premature aging. Third, age is not the flight of years, it is the dawn of wisdom in the mind of man. Fourth, the most productive years of your life can be from 65 to 95. Fifth, welcoming the advancing years. It means you are moving higher on the path of life, which has no end. Sixth, God is life, and that is your life now. Life is self renewing, eternal, and indestructible, and is the reality of all men. You live forever because your life is God's life. Seventh, evidence of survival after death is overwhelming. Study proceedings of Psychical Research Society of Great Britain and America in your library. Outstanding scientists base the work on the scientific research for over 75 years. Eighth, you cannot see your mind, but you know you have a mind. You cannot see spirit, but you know that the spirit of the game, the spirit of the artist, the spirit of the musician, and the spirit of the speaker is real. Likewise, the spirit of goodness, truth, and beauty moving in your mind and heart are real. You cannot see life, but you know you are alive. Ninth, old age may be called contemplation of truths of God from the highest standpoint. The joys of old age are greater than those of youth. Your mind is engaged in spiritual and mental athletics. Nature slows down your body so that you may have the opportunity to meditate on things divine. 10th, we do not count a man's years until he has nothing else to count. Your faith and convictions
are not subject to decay. 11. You are as young as you think you are. You are as strong as you think you are. You are as useful as you think you are. You are as young as your thoughts. Yeah, so we'll just take a break little bit and understand वैसे ये चैप्टर खत्म हो गया है जिसमें इन्होंने हमको बताया है ये असेट है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है जैसे मैं आपको बताया था मैंने एल्बर्ट आइंस्टीन भी यही बोलते हैं दैट जो आपके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं और नॉलेज उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है मतलब कितनी भी अगर आपने नॉलेज अभी हासिल की है लेकिन एक्सपीरियंस जो ज्ञान देती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता तो ये कह रही हैं ये तो शुरू से हम भी बिलीव करते ही हैं दैट दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ व्हेन यू क्रॉस 50 there is like if you see men and women start looking so beautiful बिकॉज एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है पॉइज होती है एक स्टिलनेस आ जाती है जो सब बाइबल में लिखा हुआ है ना एक इनेट विजडम आती है विच इज ऑलवेज देयर तभी तो हम हमेशा किसी बड़ों से राय लेते हैं ना मतलब मेरे बच्चे भी कोई छोटी सी भी चीज होगी या वो होता है तो दे विल ऑलवेज कम मम्मा व्हाट शुड वी डू व्हाट इज द राइट थिंग टू डू ये ऐसे कर लेना चाहिए मुझे उनसे बात करनी है मैं कैसे बात करूं है ना जबकि ऐसा नहीं है कि मतलब आई फील दे आर मच मोर स्मार्टर इवन देन मी लाइक विद बोथ माई चिल्ड्रन आर मच स्मार्टर देन मी बट जहां पे भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है वे दे आर स्टक और जहां पे वो डायलेमा में है या समझ में नहीं आ रहा है दे विल ऑलवेज कम एंड आस्क आई हैव ऑलवेज गॉन टू माई मम इन लॉ टू आस्क कि मम्मी ऐसा ऐसा है तो वो बता देती है मेरे हिसाब से तो ये करो बाकी आप देख लो आपको कैसे चाहिए है ना सो इट इज दैट innate wisdom that these people have and of course like जैसे इन्होंने बताया है उम्र के साथ आप बहुत बेटर एंड बेटर होते जाते हो बिकॉज यू आर जस्ट एज यंग एज यू थिंक एंड बट मेक योर सेल्फ यूजफुल make yourself useful don't think that okay now I have betas and bahus and मेरा तो retirement हो गया है घर से be very involved in the functions of the house है ना कई बार होता है जब फादर इन लॉ बन जाते हैं हम या मदर इन लॉ बन जाते हैं तो हमें लगता है कि अब ये लोग देखेंगे बच्चे मेरा रिटायरमेंट हो गया नो इट इज नॉट लाइक दैट अपने आप को हमेशा यूजफुल उन लोगों को बहुत जरूरत है आपकी घर वालों को है ना जो घर में भी स्टाफ होते हैं उनको हमारी बहुत जरूरत होती है सो इट्स नॉट दैट एवरीथिंग इज ओवर नाउ राइट सो इट इज जस्ट ब्यूटिफुल सो दैट्स व्हाट नेक्स्ट सेज योर ग्रे हेयर इज एन असेट या 12. Your gray hair is an asset. You're not selling your gray hairs. You are selling your talents, abilities, and wisdom, which you have gathered through the years. 13. Diets and exercises won't keep you young. As a man thinketh, so is he. 14. Fear of old age can bring about physical and mental deterioration. The thing I greatly feared has come upon me. 15. You grow old when you cease to dream and when you lose interest in life. You grow old if you are irritable, crotchety, petulant, and cantankerous. Fill your mind with the truths of God and radiate the sunshine of His love, that is youth. 16. Look ahead, for at all times you are gazing into infinite life. 17. Your retirement is a new venture. Take up new studies and new interests. You can now do the things you always wanted to do when you were so busy making a living. Give your attention to living life. 18. Become a producer and not a prisoner of society. Don't hide your light under a bushel. 19. The secret of youth is love, joy, inner peace, and laughter. In Him there is fullness of joy. In Him there is no darkness at all. 20th. You are needed. Some of the great philosophers, artists, scientists, writers,
and other accomplished their greatest work after they were 80 years old. 21. The fruits of old age are love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. 22. You are a son of infinite life, which knows no end. You are a child of eternity. You are wonderful. Yeah, so this is all we'll read, and thank you so much, Poonam, for reading this and so Thank you. beautifully and Thank aram you so aram much. se with so much of poise and stillness and calmness, like the calm waters. Thank you. Thank you so much, ma'am. Learning from you. Thank you so much. थैंक यू सो इसका जो इन्होंने इसमें बताया है दैट लुक फॉरवर्ड टू डूइंग न्यू थिंग्स इन लाइफ, यानी कि आपकी चाहे कुछ भी एज हो, एंश्योर दैट आपकी ड्रीम लिस्ट तैयार है आगे के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अब क्या करना, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग नाउ यू गोइंग टू डू, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग नाउ यू गोइंग टू डू। तो वो यही बोल रहे हैं, लिव, इट्स नॉट लिव योर लाइफ, इट इज लिव योर लाइफ, दैट इज वॉट। और वो बोल रहे हैं इसीलिए फ्यूचर के लिए अपने इंटरेस्ट, आपको क्या क्या जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या अचीव करना है, किताब लिखनी है, कहाँ सेवा करनी है, क्या करना है, ये सब बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू डूइंग दैट कि वाओ आई हैव टू डू इट, वाओ आई हैव टू डू इट, देयर हैज टू बी एक्साइटमेंट इन लाइफ कि नेक्स्ट ये करना है। वो कह रहे हैं तभी आप अपनी एज इंजॉय कर पाओगे। अगर ये है कि बस आज का दिन और निकल जाए, अच्छा कल का दिन है ये और निकल जाए, तो हम अपनी नहीं और अपने आसपास के लोगों की भी लाइफ जिंदगी खराब करेंगे, है ना, पूरे टाइम एक्सपेक्टेशन कर करके। डोंट एक्सपेक्ट, लिव योर ओन लाइफ एंड एंजॉय टू द फुलेस्ट, दैट इज व्हाट इट सेज। एंड विद अ लॉट ऑफ लव, जॉय, पीस, पेशेंस, जेंटलनेस, गुडनेस, जो इनेट क्वालिटीज है जो उम्र के साथ वैसे भी आ जाती हैं, इसीलिए बता रहे हैं यू आर अ सन ऑफ इनफाइनाइट लाइफ, है ना, जिसका कोई अंत नहीं होता, अनंत है। सो एंड देन ही सेज, लास्ट सेंटेंस इनका है, यू आर वंडरफुल। How cool is that? So, with this, we come to an end of this book. And from tomorrow, we will study Super Accelerated Living by Bentino Massaro.